آگے بڑھنے لگا۔ کئی کمرے درمیان میں آتے تھے۔ چند قدم ہی آگے تھا کہ اچانک ایک کمرے کا دروازہ کھلا، ساتھ ہی ایک کان پھاڑ دینے والی نسوانی چیخ سنائی دی اور کمرے سے نکلنے والا مجھے لپیٹ میں لیے ڈھیر ہو گیا۔ نہیں بھاگنے دوں گی پاپی، نہیں جانے دوں گی، ذلیل کمینے، خون کر دوں گی تیرا۔ ہے بھگوان، کوئی ہے، دوڑو پکڑو، یہ بھاگ رہا ہے۔ آواز کوشل کی تھی۔ اس نے مجھے دبوچ لیا تھا اور وہ انتہائی ناقابل اعتراض حالت میں تھی۔ اس کے لباس کے تار اس کے بدن پر جھول رہے تھے اور بس چاروں طرف سے لوگ دوڑ پڑے۔ جگن ناتھ بھی تھے، گھر کے ملازم اور دوسرے لوگ بھی تھے۔ کوشل چیخی، اس نے لوٹ لیا پتا جی، اس نے مجھے برباد کر دیا۔ ہائے، آستین کے سانپ نے مجھے ڈس لیا۔ پتا جی، میں بن موت مر گئی۔ ہائے پتا جی، کوشل بلک بلک کر رونے لگی۔ روشنیاں جلا دی گئیں۔ سب نے ہمیں دیکھا۔ ایک ملازم نے جلدی سے ایک چادر لا کر کوشل کو ڈھک دیا۔ جگن ناتھ تھر تھر کانپ رہا تھا۔ اس کے چہرے سے خوف برس رہا تھا۔ اس کی آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ بمشکل تمام اس نے کہا، کوشل کی ماں، اسے اندر لے جاؤ۔ نہیں جاؤں گی، اس کے ٹکڑے کر دو میرے سامنے، میں اس کا خون چاٹوں گی، اسے میں نہیں جانے دوں گی۔ چھوڑو مجھے، چھوڑو، اندر چلو، تم لوگ اپنا کام کرو، جاؤ۔ جگن ناتھ نے ملازموں سے کہا۔ تین نوجوان البتہ وہیں رکے رہے۔ ان کے چہروں پر بھیانک تاثرات پھیلے ہوئے تھے۔ میری تو قوت گویائی ہی سلب ہو گئی تھی۔ میں ساکت تھا۔ اندر گھسیٹ لاؤ اسے، جگن ناتھ نے نوجوانوں سے کہا۔ وہ جیسے منتظر ہی تھے، ٹوٹ پڑے مجھ پر، جانوروں کی طرح مجھے گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آئے۔ پارسا بنا تھا، راکھی بندھوا رہا تھا مجھ سے۔ ارے پاپی، اتنی گہری چال چلی تو نے، تو راکھی کی ریت کیا جانے، تیرا ستیا ناس، کوشل روتے ہوئے بولی۔ کیا ہوا کوشل؟ کوشل کی ماں نے پوچھا۔ غلطی میری تھی ماتا جی، ہائے میں خود اپنا شکار ہو گئی۔ ماتا جی، میں اس کے پاس گئی گرو جی کی بات منوانے، میں نے منتیں کی، اس نے صاف منع کر دیا۔ میں واپس آ گئی، یہ اچانک میرے پاس آیا، دروازہ بجایا اس نے، میں نے اسے دیکھ کر کھول دیا۔ میں خوش ہو گئی، میں نے سمجھا کہ شاید یہ اب میری بات مان لے گا، مگر ماتا جی یہ جنگلی وحشی جانور، ماتا جی اس نے مجھے بہت مارا ہے، ماتا جی اس نے۔ کوشل بلکنے لگی اور اچانک یہ نوجوان بے قابو ہو گئے۔ وہ جنگلی کتوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے اپنا سر اور چہرہ بچا رہا تھا۔ میرے حلق سے کراہیں نکل رہی تھی۔ اسی وقت دروازے پر بھوریا چرن کی آواز آئی۔ ارے رے رے، رک جاؤ، بس کرو، جاؤ، مار ڈالو گے پاپی کو، رک جاؤ گیانی جی، اس نے جگن ناتھ کی آواز روند گئی۔ اس ناگ نے مجھے ڈس لیا ہے مہاراج، اس ناگ نے، کوشل روتی ہوئی بولی۔ ناگ تو ڈستا ہی ہے کوشل، وہ تو، یہ آخری الفاظ تھے جو میرے کانوں میں پڑے اور اسی وقت میری آنکھیں بند ہو گئیں۔ حواس نے ساتھ چھوڑ دیا۔ بھوریا چرن کا جملہ پورا میری سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بے ہوشی نہ جانے کتنی طویل تھی، ہوش نہ جانے کہاں آیا۔ سینے پر کوئی چیز رکھی ہوئی تھی، چبھن سی ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیا تھا۔ سب کچھ دفتن بازو میں شانے کے قریب کسی نے خنجر اتار دیا۔ سینے پر دباؤ زیادہ ہو گیا، بازو کی تکلیف سے آنکھیں کھل گئیں۔ پھیپھڑوں کی پوری قوت سے چیخا اور خود اپنے مسلسل بھیانک چیخیں سن کر خود ہی خوف زدہ ہو گیا۔ میری انہی چیخوں سے میرے سینے پر بیٹھا خوفناک پرندہ بھی خوف زدہ سا ہوا۔ گدھ تھا اور میرے سینے پر بیٹھ کر ضیافت اڑانا چاہتا تھا۔ اسی نے اپنی مڑی ہوئی تیز چونچ میرے بازو میں اتاری تھی اور بازو بری طرح سے ادھیڑ دیا تھا۔ زخم سے خون کا فوارہ بلند ہو گیا تھا اور میرے بری طرح تڑپنے سے گدھ نے اپنی جگہ چھوڑ دی۔ اس نے اپنی چھتری جیسے پر پھیلائے اور صرف چند قدم کے فاصلے پر اتر کر جا بیٹھا۔ وہ بھوکی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بازو کی تکلیف سے جان نکلی جا رہی تھی، حلق سے مشینی انداز میں کربناک چیخیں نکل رہی تھی۔ بے اختیار اٹھ کر بھاگا اور گدھ خوف زدہ ہو کر دوبارہ اڑ گیا۔ مجھے ٹھوکر لگی اور میں گر پڑا۔ پورے بدن میں ٹیسیں اٹھ رہی تھی، لگتا تھا جیسے بدن کی ساری ہڈیاں ٹوٹ گئی ہوں۔ خون بری طرح سے بہہ رہا تھا۔ شدت تکلیف سے دیوانہ ہو کر میں نے زخم پر اپنا منہ رکھ دیا اور بہتا ہوا خون ہی چوسنے لگا، گاڑھا نمکین خون جو بدن سے بہہ جانے کے لیے بے چین تھا۔ کوئی ہے، میری مدد کرو، میری مدد کرو، میں مر رہا ہوں، میری مدد کرو۔ میں نے آواز لگائی۔ گدھ مجھ سے زیادہ زوردار آواز میں چیخا اور پنجے دبا کر فضا میں بلند ہو گیا۔
मैं जानवरों की तरह अपना बाजू भिंभोड़ रहा था, जख्म की इस जलन को ठंडा करना चाहता था, मगर ये मुमकिन नहीं हो रहा था। मैं इधर उधर भागता रहा, गिरता रहा। फिर एक जगह मट्टी नजर आई। मैंने मुट्ठी भरी और उसे जख्म से लगा दिया। मिट्टी खून में लिथड़ गई, मगर इससे फायदा ये हुआ, कुछ ठंडक सी महसूस हुई। मनहूस गिद्ध लंबे लंबे चक्कर लगाकर बार बार मेरे सर पर आ जाता। वो मुसलसल चीख रहा था। बस गलती हो गई थी उससे, जरा देर हो गई थी। आलम बेहोशी में उसे अपना काम कर लेना चाहिए था। जगह के इंतखाब में गलती हुई थी। उसे आंखों पर चोंच मारना चाहिए थी या पेट पर हमला करना चाहिए था। वो बेचैन था और मेरे गिर जाने का इंतजार कर रहा था। खून रुक गया। मैं मुसलसल करा रहा था। बार बार चक्कर आ रहे थे। जमीन घूमती हुई महसूस हो रही थी। आंखों में धुंधलाहट आ जाती थी, लेकिन सोचने समझने की कुव्वतें बाकी थी। गिद्ध से बचने का यही तरीका है कि मुतहर्रिक रहूं, उसे अपनी जिंदगी का यकीन दिलाता रहूं। काफी आगे बढ़ आया। चारों तरफ पत्थरों के अंबार थे। न जाने कौन सी जगह थी। गिद्ध बहुत देर तक मंडलाता रहा, फिर मायूस होकर चला गया। जब वो दूर निकल गया तो मैं एक बड़े से पत्थर पर बैठ गया। थक गया हूँ, मेरी मदद करो मेरी कोई। बर्दाश्त खत्म हो गई है, मेरा काम खत्म हो गया है, अब खुदकुशी कर लूँगा। जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा, सुन रहे हो? जिम्मेदार मैं नहीं हूँगा, खुदकुशी कर लूँगा। बस जो मुंह में आ रहा था मैं कहे जा रहा था। फिर उठकर चल पड़ा। खुदा जाने क्या हुआ, कैसे यहाँ आ गया। सब कुछ याद था। मारा था उन लोगों ने मुझे। कुछ नहीं कह सकता था। कुछ कहना भी बेकार था, बिल्कुल बेकार। चलता रहा और बहुत दूर तक निकल आया। उस जगह से चंद दरख्त नजर आए। बहुत दूर निकल आया था उस जगह से। चंद दरख्त नजर आए। उनके साए में एक चश्मा था। दरख्तों के नीचे गले सड़े फल पड़े हुए थे, गोल गोल छोटे छोटे, फीके और बदमजा। जख्मी बाजू तो सीधा ना हुआ। दूसरे हाथ से फल उठा कर खाता रहा। कुछ फासले पर एक बड़ी और ऊंची चट्टान थी। उसके दामन में ईंटें चुनी हुई थी। एक कमरा सा बना हुआ था, उसमें दरवाज़ा था। देखता रहा, कोई तजस्सुस ज़हन में नहीं उभरा। बस एक ही ख्वाहिश थी, ज़मीन पर पड़े सारे फल मैदे में उतार लूं। हलक तक भर लिया, पानी के चंद घूंट लिए और चश्मे के किनारे ही लेट गया। जख्मी हाथ पानी में डाल दिया। फिर ज़ोर से चक्कर आया और आंखें बंद हो गईं। कोशिश के बावजूद ना खुल सकी। मगर ज़िंदगी बड़ी अजीब चीज़ है। आंखें फिर खुली। माथे पे कुछ रखा हुआ था, सीने पे वज़न था। फिर से गिद्ध का ख्याल आया, फिर आ गया। नीम मदहोशी के आलम में मैंने सोचा, श हु हा हा। मेरे मुंह से बेख्तियार आवाज़ें निकलीं और मैं उठ बैठा। लेकिन फ़ौरन ही किसी ने भरपूर दबाव डालकर मुझे नीचे लिटा दिया और फिर एक आवाज़ सुनाई दी, नहीं मियाँ नहीं, होश में आओ, लेटे रहो। लेट तो गया था, मगर यह आवाज़ गिद्ध की तो नहीं थी। शायद फिर कौन है ये? अचानक माथे पर कोई ठंडी सी चीज़ आ गई। आंखें भी ढक गई थी। मैंने हाथ उठाकर आंखों पर रखी शय हटाने की कोशिश की। गीला कपड़ा था। वही नर्म आवाज़ दोबारा सुनाई दी, बेटे आराम से लेटे रहो, दिलो दिमाग को सुकून दो, तुम महफूज जगह पर हो, कोई खतरा नहीं है तुम्हें यहाँ, बेफिक्र हो जाओ। ये क्या है? मेरी आंखों से हटाओ, इसे हटाओ। मैंने गीला कपड़ा आंखों से हटा दिया। तब मैंने वो चेहरा देखा। उम्र रसीदा शख्स था। सफ़ेद दाढ़ी, चेहरे पर चीचक के दाग थे, रंग काला था, पेशानी पर एक बड़ा गहरा सा निशान। कौन हो तुम? एक बंदे खुदा हूँ मियाँ, फजल हुसैन नाम है मेरा। मुसलमान हो? अल्हम्दुलिल्लाह, फजल हुसैन ने कहा। मैंने गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखा। पत्थरों को चुनकर एक कमरा सा बना दिया गया था, कुशादा और हवादार था। मैं गहरी गहरी सांसें लेने लगा। पानी पियोगे? हाँ, मैंने खुश होंठों पर जबान फेर कर कहा। फजल हुसैन ने एक आबखोरे में मुझे पानी दिया। कई आबखोरे पिए थे तब सुकून हुआ। मैं फजल हुसैन को देखने लगा। मैंने तुम्हारे बाजू का जख्म साफ करके पट्टी बांध दी है। तुम्हें शायद इसकी तकलीफ की वजह से बुखार हो गया है। खुदा के फजल से अब बुखार भी हल्का हो गया है। मैं उठकर बैठना चाहता हूँ। मुझे यहाँ घुटन महसूस हो रही है। बाहर जाना चाहता हूँ। कोई हर्ज नहीं है, आओ, फजल हुसैन ने कहा और मुझे सहारा देकर उठाया और फिर उस कुटिया से बाहर ले आए। वही नखलिस्तान जैसी जगह थी जहाँ होश के आलम में पहुँचा था और दरख्तों से गिरे हुए नामालूम फल खाए थे।
बाहर मौसम बेहद खुशगवार था, ठंडी हवा चल रही थी। तुम यहाँ तन्हा रहते हो? मैंने पूछा। बैठ जाओ, बताता हूँ, बुजुर्ग ने कहा और मैं एक पत्थर पर बैठ गया। फजल हुसैन बाबा बोले, बिल्कुल तन्हा नहीं हूँ, एक दुनिया आबाद है यहाँ। चरिंद परिंद की हम नशीनी है, खूब बातें रहती हैं इनसे। परिंदों की डारें पानी पीने आती हैं, उनसे दोस्ती है। कोई इंसान नहीं है। क्यों नहीं? अब तुम जो आ गए हो। तुम यहाँ रहते हो? मैंने पूछा और बाबा फजल हंस पड़े। शुक्र है माबूद का, तुम ठीक हो गए। ये मेरे सवाल का जवाब है? नहीं, खुश हो रहा हूँ। 3 दिन के बाद होश में आए हो, मगर जब जहन में तजस्सुस जाग उठे तो खैर छोड़ो, कहानी सुनाऊं। कहानी सुनना चाहते हो? सुन लो, तुम्हारी खुशी ज़रूर पूरी करूँगा। मैं यहाँ क्यों रहता हूँ? बस दुनिया वालों ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मेरा चेहरा देख रहे हो, बस कोर चशम दुनिया वाले इससे नफरत करते थे। 4 भाई थे हम, 3 खूबसूरत थे। मुझे खुदा ने ये शक्ल दी थी। लोगों ने उसकी रज़ा में नुक्ताचीनी शुरू कर दी। दिल बर्दाश्ता हो गया और झुंझलाहटों का शिकार हो गया। खुद खलके खुदा से उसकी नफरत का बदला लेने लगा। तब एक अल्लाह वाले की नज़र हो गई। कहने लगे, फजल हुसैन, जो ये कर रहे हैं वही तुम भी कर रहे हो। ये कोर बीना है, मगर तुम बीनाई हासिल करो, इनसे दूर हट जाओ। अल्लाह अपने बंदों को नुकसान पहुंचाने वालों को माफ़ नहीं करता। बस मियाँ, ये गोशा आबाद कर लिया और बहुत खुश हूँ। कायनात की सच्चाइयाँ यहाँ नज़र आती हैं। इंसान भटक गया है, मगर अल्लाह की मखलूक वसी है। दूसरे बहुत से हैं। नन्हे नन्हे परिंदे मेरे शानों पर आ बैठते हैं, मासूम हैं, मुझे मोहब्बत से देखते हैं और मेरी सब शिकायतें खत्म हो गई। खाते पीते कहाँ से हो? राज़िक से इतना फासला है तुम्हारा, उसे क्यों भूल गए बेटे? ये दरख्त, ये चश्मा, अल्लाह ने ही सब कुछ मुहैया कर रखा है। ये फल खाकर जीते हो। आह, भटक जाने वालों ने दुनिया खुद पर तंग कर ली है। अल्लाह की ये नेमत अपना एक मुकाम रखती है। शुक्र है उस माबूद का। फजल हुसैन ने पुरतशक्कुर लहजे में कहा, फिर मुस्कुरा कर बोले, मियाँ अब तुम्हारी बारी है। हमें भी तो कहानियाँ पसंद हैं। मेरी कहानी मौत की कहानी है फजल बाबा। मेरी कहानी सुनने वाला फिर कोई और कहानी सुनने के लिए जिंदा नहीं रहता। खूब, तुम्हारी कहानी का आगाज़ कब से हुआ है अजीज़ी? क्या मतलब? मेरी समझ में बात नहीं आई। तुम्हें यकीन है कि इस कायनात में जितनी अमवात हुई हैं तुम्हारी कहानी सुनकर हुई हैं? ऐसा नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने मेरे बारे में जान लिया है वो अभी मैं अब जुमला पूरा नहीं कर सका था। अभी मैंने जुमला पूरा नहीं किया था कि बाबा फजल हुसैन बोल उठे, गलत मुशाहिदा है बेटे। मौत जिंदगी की तरह एक ठोस सच्चाई है। कब आना है, कब जाना है, नहीं जानते। क्या हुआ तुम्हारे साथ? ना पूछो फजल बाबा, मैं डरता हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। बताओ बेटे, मैं तुम्हारे दिल से खौफ निकालना चाहता हूँ। मुझे अपने बारे में ज़रूर बताओ। फजल हुसैन ने ज़िद करने के अंदाज में कहा और मैं उन्हें देखने लगा। फिर मैंने अव्वल से आखिर तक सारी बातें उन्हें बता दी। वो खामोशी से सुनते रहे, देर तक आंखें बंद किए बैठे रहे। फिर बोले, इसके बावजूद अपनी खुशबख्ती से मुनहरिफ हो? खुशबख्ती? हाँ बेटे, इन मुश्किलात के बावजूद ज़िंदगी की नेमत तुम्हें हासिल है। ईमान की दौलत नहीं छीनी तुमसे। एक लम्हे में ईमान जाता है और कुछ नहीं रह जाता। अपने ईमान के मुहाफिज तुम नहीं हो। बाखुदा तुम्हारे ईमान की हिफाजत की गई है, वरना एक लम्हा दरकार होता है, सिर्फ एक लम्हा। यकीनन कुछ जिम्मेदारियां तुमसे मंसूब की गई हैं। कोई काम करना है तुम्हें, ज़रूर कोई काम करना है। अब एक सवाल करूं तुमसे बेटे? ज़रूर। अस्पताल में थे, कोढ़ी हो गए थे, नमाज शुरू कर दी थी, सलीम के कहने से कर दी थी ना? हाँ, छोड़ दी। हाँ, वो बस हालात मैं आपको बता चुका हूँ। मैंने किसी कदर हैरानी से पूछा, बेटे जो हालात तुमने सुनाए हैं उनमें कोई ऐसा मकाम नहीं आता जहाँ तुम्हें नमाज पढ़ने में दिक्कत हो। दरअसल तुमने गौर नहीं किया, सोचा नहीं, वरना तुम खुद मुझे बता रहे होते कि सुकून का आगाज़ कहाँ से हुआ। तुम्हें नमाज नहीं छोड़नी चाहिए थी। आंखों के सामने से पर्दा सा हट गया। गुजरे हुए वाक़यात याद आए तो एहसास हुआ कि वो लम्हात वाकई बेहतरी के आगाज़ के थे। हालांकि मैंने फजल हुसैन बाबा को इतनी तफसील से वाक़यात नहीं सुनाए थे। हाँ, बस सरसरी तौर पर उनके बारे में बताया था। मैं सोचता रहा। फजल बाबा बोले, ताहम वक्त है, जो हो गया सो हो गया, जो कल ना किया आज सही, अभी से सही।
بازو کے زخم پر پٹی باندھ دی ہے، اس نیت سے چشمے پر جا کر غسل کرو۔ جاؤ بیٹے، اب تم بالکل ٹھیک